سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت النبی کی 7ویں قسط میں خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس دین پر لبیک کہنے کی وجہ سے اور اس کلمے کو بلند کرنے کی وجہ سے مکہ کی گلیوں میں ستایا گیا اور کس طرح سے ان کو تکالیف دی گئی۔ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کس طرح سے جسمانی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، لیکن یہ معاملہ صرف جسمانی طور پر محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی طور پہ بھی اتنی تکالیف دی گئی کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ مشرکین نے اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے مطالبات کی لسٹ لے کے آئے جس کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا جا سکے۔ عجیب و غریب قسم کے خیالات وہ اپنے ساتھ لے کے آئے، اور ان میں سے کوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا کہ مکہ کے اندر بڑی خشک سالی ہے اور ہمارے پاس پانی کی کوئی سہولت نہیں ہے، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اپنے خدا سے کہو اور مکہ کے اندر ایک چشمہ ہی رواں کر دو تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں۔ اسی طریقے سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کیوں نہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے جو تمہاری مدد کر رہے ہوتے، اور تم ان فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو، اگر ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پہ بھی بس نہیں کیا، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو اٹھ کے یہ کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہی ہو تو کیوں نہیں ہم پہ عذاب وہ مسلط ہو جاتا جس کی تم بات کرتے ہو، اور جن قوموں کا تم تذکرہ کرتے ہو اسی طرح کا کوئی عذاب ہم پہ ہی مسلط کر دو تاکہ باقی لوگ ہمیں دیکھ کے تمہارے دین پر آ جائیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھی۔ اس طرح کے مطالبات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جاتا کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے۔ کسی نے تو یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو اس قدر غریب الحال کیوں ہیں؟ اللہ سے کہیے، اپنے خدا سے کہیے کہ وہ آپ کو سونے اور جواہرات عطا فرمائے تاکہ آپ امیر ہو سکیں، پھر شاید ممکن ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں۔ یہ وہ رویہ تھا، یہ وہ جہالت تھی جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، اور ایسے لوگوں کا سامنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو سلام، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاص سے اور پوری درد مندی سے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو جہنم سے بچا دیا جائے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یہ فرمایا کہ تم جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو اور میں قمیضوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، یہ وہ درد مندی تھی، یہ وہ امت کا غم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پایا جاتا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے، اور اسی دوران ہجرت حبشہ بھی ہوئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی جو قبولیت کا تذکرہ میں نے گزشتہ قسط میں کیا تھا، وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہوئی، اور اسلام کو دو بہترین ہوا کے جھونکے موصول ہوئے۔ ان میں سے پہلا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی عمارت کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی، اور نہ صرف یہ کہ بد کلامی کی بلکہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ بھی کیا، اور اس واقعے کو ایک لونڈی نے دیکھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شکار سے واپس آئے اور وہ لونڈی حضرت حمزہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تم کیسے چچا ہو کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور تم کچھ نہیں کرتے، اور جب اس لونڈی نے حضرت حمزہ کے سامنے وہ تمام روداد رکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے روا رکھا تھا، جو سلوک روا رکھا تھا، تو اس کو سن کے حضرت حمزہ نے کہا کہ کیا واقعی میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا ہاں ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو حضرت حمزہ غصے میں ابو جہل کی طرف بڑھے، اور ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی کمان اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، تم نے اس کے ساتھ بد کلامی کی ہے، جان لو کہ آج کے بعد میں بھی اس کے دین پر ہوں، تم جو کچھ کر سکتے ہو میرا کر لو۔ یہ سننا تھا کہ سب کو سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت حمزہ ایک جری صحابی تھے۔ حضرت حمزہ کا شمار مکہ کے اندر بہادر لوگوں میں ہوتا تھا، اور ان کا قبول اسلام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ ابو جہل نے جب یہ بات دیکھی اور لوگوں نے جب
हज़रत हमज़ा पे हमला करना चाहा तो अबू जहल ने उनको रोक दिया। इसके बाद जो दूसरी मुसलमानों को एक यूँ समझें कि ठंडी हवा का झोंका मिला, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से घर से निकले, लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कि ज़रा अपने घर की खबर तो लो, और वो अपने बहन और बहनोई का तस्करा जब उन्होंने सुना कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया है, तो वह घर तशरीफ़ लेके जाते हैं। हज़रत खबाब बिन नर्द, हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत खबाब बिन अर्थ, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत उमर ख़त्ताब की बहन को कुरान पढ़ा रहे होते हैं। हज़रत उमर आवाज़ सुन लेते हैं, घर में दाखिल होते हैं, अपने बहनोई को मारते हैं। जब उनकी बहन छुड़ाना चाहती है तो एक तमाचा अपनी बहन के मुंह पे भी मारते हैं। लेकिन उस शुजात को देखिए कि इस्लाम ने कितनी ताकत भर दी थी, दिलों को कितना ताकतवर बना दिया था कि हज़रत उमर जैसे सख्त दिल इंसान के सामने, कि हज़रत उमर जैसे एक बारोब इंसान के सामने उनकी बहन खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हाँ, हमने इस्लाम कबूल किया है, तुम जो चाहो कर लो। हज़रत उमर जब देखते हैं कि इस इस्लाम के नतीजे में लोगों में इतनी जुर्रत आ गई है, लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है, तो वो कहते हैं लाओ ज़रा वो कलाम मुझे भी सुनाओ। और वही खबाब बिन नर्द जिनकी पीठ को कोयलों से सुलगाया गया, वो उस मौके पे सामने आते हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब कुरान पाक की तिलावत को सुनते हैं तो उसी वक्त उनका दिल बदल जाता है, दिल की दुनिया बदल जाती है और आप अपनी उस हक्कानियत को पा लेते हैं जिसकी तलाश काफ़ी दिनों से आपके दिल के अंदर मौजूद थी। आप मुशरिकीन के दरमियान बैठते थे तो ये सोचते रहते थे, और हमेशा आपका रवैया ये रहा था कि आप जब मुशरिकीन की मजलिस में बैठे और मुसलमानों की अज़म को देखा तो आप उससे मुतासिर होते थे। आप कहते हैं कहाँ है मोहम्मद, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। उनको बताया जाता है कि दार अरकम में मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं कि उमर मौजूद हैं और तलवार हायल किए हुए हैं। जाके बताया जाता है, हज़रत हमज़ा कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे अंदर आने दो, अगर अच्छी नीयत से आया है तो अपनी मुराद पा के जाएगा, और अगर किसी बुरी नीयत से आया है तो मेरी तलवार उसका फ़ैसला करेगी। हज़रत उमर अंदर दाखिल होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये वो मौका है कि जिसके ऊपर तकबीर की सदाएं बुलंद हुई, लोगों ने अल्लाह अकबर के इतने बुलंद नारे किए, लोगों ने अल्लाह अकबर की सदा इतनी बुलंद अदा की कि तमाम मक्का के लोगों ने उसको सुना। और उसके बाद मुसलमानों को ये वो पहला मौका था कि ये सादत मुसलमानों को नसीब हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम के नतीजे में मुसलमानों ने यह फ़ैसला किया कि अब हम खुल्लम खुल्ला जाके खाना काबा का तवाफ़ करेंगे और वहाँ नमाज अदा करेंगे। और हज़रत उमर फ़ारूक को साथ लेके मुसलमान उन गलियों के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए खाना काबा के पास जाते हैं। तो ये वो सूरत हाल थी जो इस सारे घुटन के माहौल में पेश हुई और मुसलमानों को एक ताकत नसीब हुई। दूसरी तरफ मुशरिकीन जब अपने मुज़ाकरात में पे दर पे नाकाम हुए तो उन्होंने सोचा कि कोई बीच की राह निकाली जाए। उतबा बिन रबिया का शुमार ज़हीन लोगों में होता था और हिकमत के हवाले से वो दीगर लोगों में मुमताज़ मकाम रखता था। उसने ये लोगों को ये ऑफ़र की कि क्यों ना मैं जाऊं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूं कि वो अपने दीन के हवाले से हमसे कोई डायलॉग करे। लोग उसके ऊपर खुश होते हैं और कहते हैं कि अबू वलीद, यकीनन तुम हम में से सबसे ज़ीरक हो, तुम जाओ और बात करो, हो सकता है कोई रास्ता निकले। उतबा बिन रबिया बढ़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर इबादत में मसरूफ़ हैं। उतबा बिन रबिया आता है, आप वसल्लम के पास बैठता है और कहता है कि मैं कोई बात करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं। उतबा बिन रबिया कहता है कि भतीजे, तुम हमारे बुतों को बुरा कहते हो, हमारे आबा व अजदाद को गुमराह कहते हो और हमारे दीन को कुफ्र तस्लीम करते हो। इससे हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है। तुमने हमारे लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है, ख़ानदानों में फूट डाल दी है। क्यों ना तुम इन सारी चीज़ों से बाज आ जाओ। अगर तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें दौलत हासिल हो, तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि इतनी दौलत मक्का में किसी और के पास नहीं होगी। और अगर ये तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें सरदार बना दिया जाए, तो हम तुम्हें बिला शिरकत गैर सरदार मानने के लिए तैयार हैं और तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये तुम इस वजह से कर रहे हो कि तुम्हें कोई बीमारी लाहक है, तो हम सबसे बेहतरीन मुआलिज का इंतज़ाम करेंगे और तुम्हारा इलाज किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, उतबा क्या तुम अपनी बात पूरी कर चुके? तो उतबा कहता है कि हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर चुका। उसके बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा के जवाब में सूरह सजदा की तिलावत करते हैं। और जब आप वसल्लम सूरह सजदा की तिलावत करते हैं तो उतबा का रंग ज़र्द पड़ जाता है और वो अपने हाथ नीचे ज़मीन की तरफ लगा लेता है
और वो सुनता चला जाता है और उस पर रक्कत तारी हो जाती है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन आयात पे पहुँचते हैं कि जिनमें कौमों की तबाही का जिक्र है, तो उतबा आपके मुंह पे हाथ रख देता है कि इससे आगे मत पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा को मुखातिब करके कहते हैं, तो फिर उतबा मेरी तरफ से यही जवाब है। उतबा वहाँ से उठ के जब अपनी मजलिस की तरफ वापस जाता है तो लोग उसकी चाल से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वो उतबा नहीं है जो यहाँ से उठ के गया था। और जब वो वापस आता है तो लोग उससे पूछते हैं कि उतबा तुम क्या जवाब लाए हो। उतबा ने उस मौके पे जो अल्फाज कहे थे, मानना पड़ेगा कि वो एक ज़हीन इंसान था। उसने आने वाली सूरत हाल को भांप लिया था, उसने देख लिया था कि ये इस्लाम किस तरफ जा रहा है और हालात का रुख कैसे बदलने वाला है। उतबा ने कहा कि मोहम्मद को इनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि अगर अरब ने इनको ख़त्म कर दिया तो तुम इस मलामत से बच जाओगे तो कि तुमने अपने ही किसी भाई को कत्ल किया है। लेकिन अगर मोहम्मद कामयाब हुए और इनके दीन को गलबा हासिल हुआ तो उतबा ने कहा कि इज़्ज़हु इज़्ज़कुम मलकहु मलककुम, उसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी, उसकी बादशाही तुम्हारी बादशाही होगी। इस पर उन लोगों ने उतबा से कहा कि देखा, हम ना कहते थे कि वो जादूगर है, उसने तुम पर भी जादू कर दिया। उतबा ने कहा कि नहीं, मैंने बहुत कलाम सुने हैं, ये जादू नहीं है, ये शायराना कलाम नहीं है, जो कुछ मैं सुन के आया हूँ ये एक बड़ा इनकलाब रूनुमा पे होने वाला है। इस मुलाकात के बाद मुशरिकीन को ये यकीन हो चुका था कि अब कोई और सूरत बाकी नहीं रही, और एक आखिरी मरतबा वो जनाब अबू तालिब के पास आते हैं। वो आके जनाब अबू तालिब से ये कहते हैं कि अब हमारे और आपके दरमियान कोई सूरत नहीं बची है, या तो आप मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें। और इस दफ़ा वो ये नई बात ये लेके आते हैं कि वो जनाब अबू तालिब से कहते हैं कि आप मोहम्मद को हमारे हवाले करें, अगर हम उनको कत्ल करेंगे और उसका खून बहा आपको अदा करेंगे, वरना फिर हम आपके पूरे ख़ानदान से झगड़ा करेंगे। इस पर जनाब अबू तालिब उनको वापस भेज देते हैं और उनकी इस बात को तस्लीम नहीं करते, और कुरैश उनको ये धमकी दे के जाते हैं कि फिर हम उनको खून बहा अदा किए बग़ैर ही उनके कत्ल की कोई तजवीज़ करेंगे। नाउज़ु बिल्लाह। जनाब अबू तालिब को इसके बाद एहसास हुआ कि अचानक कोई हमला हो सकता है। इससे पहले उक़बा बिन अबी मुइत हमला कर चुका था, हज़रत उमर भी तलवार लेके निकले थे। तो जनाब अबू तालिब अपनी मदद के लिए कबीला बनी हाशिम को जमा करते हैं और उनके सामने ये बात रखते हैं कि आज अगर तुमने मेरे भतीजे की हिमायत ना की और मेरे बेटे की हिमायत ना की तो कल कबीला बनी हाशिम के दीगर बेटों को भी कुर्बान किया जाएगा, दीगर बेटों को भी कत्ल किया जाएगा, और कोई किसी की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ये वो मौका था कि जिस पर कबीला बनी हाशिम के गैर मुस्लिम लोगों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि हम इनकी जान की हिफाजत करेंगे। जब ये बात कुरैश तक पहुँची तो कुरैश ने फिर ये फ़ैसला किया कि अगर कबीला पूरा जमा हो चुका है तो हम पूरे कबीले का बाइकाट करेंगे। और फिर वो वाक़या रूनुमा हुआ सन 7 नबवी के अंदर कि जिसको शेब अबी तालिब के नाम से याद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आपका पूरा ख़ानदान एक घाटी के अंदर महसूर हो जाता है। मुशरिकीन ये अहद करते हैं कि हम ना तो इनसे कोई ताल्लुक़ रखेंगे, ना कोई लेन देन करेंगे और ना कोई तिजारत करेंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान कुछ महीने नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ साल नहीं, 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान शेब अबी तालिब में महसूर रहा। हालत ये थी कि लोग चमड़ा उबाल के पिया करते थे, बच्चे भूख से रोया करते थे और माँओं के पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था। इतनी तकलीफ़ से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने एक राह निकाली। चंद लोगों के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ और उन्होंने मुशरिकीन से जाके ये कहा, और उनके चंद लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये कैसा मुआहिदा है कि हमारे बच्चे तो खाएं पिएं और पले बने और बनी हाशिम के बच्चे भूख से रोते रहें। और फिर एक वाक़े के नतीजे में यह मुआहिदा ख़त्म होता है, वो सहीफ़ा चाक किया जाता है और उस मौके पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मुशरिकीन ने देखी, लेकिन उनको कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जनाब अबू तालिब का ख़ानदान शेब अबी तालिब से सन 10 नबवी में निकलता है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 नबवी को आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पनाही करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत बाजू बनने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बनकर खड़े रहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। जनाब अबू तालिब की वफ़ात होती है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा जाती हैं। यके बाद दीगरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 धचके लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते हैं। एक तरफ वो चचा कि जिसने तमाम दुश्मनों के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, दूसरी तरफ वो बीवी कि जो मायूसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाती थी, गम और परेशानी के हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बनती थी। दोनों शख्सियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो जाती हैं
اور آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हज़्न यानी गम का साल करार देते हैं। मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा होता है कि अब यहाँ पे मज़ीद शायद लोगों के लिए हिदायत का कोई मौका बाकी नहीं रहा। ये लोग शायद अब दीन की दावत पे लब्बैक कहने वाले अब इनके दरमियान कोई नहीं बचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरादा फरमाते हैं कि आप मक्का से बाहर दीन की तबलीग करेंगे और आप ताइफ तशरीफ़ ले जाते हैं। जब आप ताइफ तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपकी मुलाकात ताइफ के 3 सरदारों से होती है। उन तीनों के जवाब ऐसे जवाब थे कि दिल छलनी हो जाता है। पहले ने तो ये कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कहीं मैं कोई बदकलामी ना कर बैठूं, और अगर आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं तो मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। दूसरा उठता है और वो ये कहता है कि क्या खुदा को रसूल बनाने के लिए तुम ही मिले थे, कोई और नहीं बचा था। ये ऐसी बातें थीं जो दिल के अंदर तीर हो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वक्त के रसूल को इस तरह की बातें कही जा रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इन बातों को बर्दाश्त करते हैं और वहाँ से उठ के चलने लगते हैं। लेकिन उन लोगों ने यहाँ तक बस नहीं की, बल्कि ओबाश लड़कों का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया जाता है कि जाओ और ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी ख़बर लो। और वो गिरोह सामीने कराम ताइफ की गलियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके साथ आपका ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन गलियों के अंदर ओबाश लड़के दौड़ाते हैं और आपके ऊपर पथराव किया जाता है। सूरत हाल ये है कि आसमान ने ये मंज़र देखा कि वक्त के रसूल को, इमामुल अंबिया को, रहमतुल लिल आलमीन को ताइफ की गलियों में पत्थरों से लहूलुहान किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों का निशाना ले लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि आपके जूते मुबारक खून से भर गए। और जब इस शिद्दत से, तकलीफ़ की शिद्दत से निढाल होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं तो 2 ओबाश लड़के आते हैं और आपके कंधों से पकड़ के आपको खड़ा कर देते हैं कि चलिए, ताकि आपके ऊपर मज़ीद पत्थर बरसाए जाएँ। ये वो दिन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से बाहर निकल कर बैठते हैं और अल्लाह के यहाँ अपनी मनाजात पेश करते हैं और दुआ करते हैं, तो ये वो मौका था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मखमूम हुआ और आपने अपने रब से ये बात कही, आपने अपनी मनाजात पेश की उस मौके पे कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है, इन लोगों के हवाले कर दिया है कि जो चाहे मेरे साथ सलूक पेश करें। अगर तू इसमें मेरे साथ राज़ी है तो अल्लाह मैं भी राज़ी हूँ, मैं तेरी आफ़ियत चाहता हूँ। और उस मौके पर अल्लाह का जलाल आता है और अल्लाह का फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मेरे साथ पहाड़ों का फ़रिश्ता आया है, अगर आप हुक्म दें तो इस बस्ती को इन 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाएगा। लेकिन मेरे नबी रहमत लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई इस्लाम ले आए। अंदाज़ा कीजिए कितनी मोहब्बत थी, कितनी उम्मत के साथ मोहब्बत थी कि उस मौके पे इस कैफियत के अंदर के दिल ज़ख्मी है, जिस्म ज़ख्मी है, खून बह रहा है, लेकिन उस मौके पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से मोहब्बत के इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया। वहाँ से वापस आते हैं, अल्लाह ताला ने इस गम की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस इस तरह से बंधाई कि जिनों का एक गिरोह वहाँ से गुजरा और उसने कुरान की तिलावत सुनी और वो पूरा का पूरा गिरोह इस्लाम ले आता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की हक्कानियत का एक सबूत था। अब सूरत हाल ये है कि मक्का के अंदर जनाब अबू तालिब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं और मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनियावी तौर पे यकीनन अल्लाह का आसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़ी था, लेकिन एक जो अमान की पोजीशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतिम बिन अदी के नाम से एक शख्स था, उसको पैगाम भेजा कि क्या तुम मेरे लिए अमान का ऐलान करते हो। और जब उस तक पैगाम जाता है तो वो कहता है, वो राज़ी हो जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आपको आके ये बताता है कि हाँ, उन्होंने रज़ामंदी का इकरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यूँ नहीं, उसे कहो कि आए और मुझे यहाँ से लेके जाए। और वो नखला वादी के अंदर मुतिम बिन अदी अपने बेटों के साथ हथियार बंद होकर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके जाता है और खाना काबा के पास खड़ा होकर ये ऐलान करता है कि आज के बाद मोहम्मद मेरी अमान में है। और जब ये लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि ठीक है, जिसे तुमने अमान दी उसे हमने अमान दी। इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीन की दावत को फैलाने का एक और तरीक़ाकार इख्तियार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ سے باہر قبائل کو دین کی دعوت پھیلانے کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے سر توڑ کوشش کریں۔ اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر